वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो ओके फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तो हम एक अपडेट ले लेते हैं। तो द लास्ट वीक लाइक आई सेड, मैंने वैसे इन द आई थिंक इन पास्ट 2 weeks आई हैड सेड इन दिस वन वीडियो दैट दिस इज वेयर द ब्रेकआउट वाज देयर, और उसके बाद वी हैव सीन अ शार्प अप मूव। अब मेरे जो टारगेट थे, 4 टारगेट थे एंड द लास्ट वन वाज 21,500। वो अभी तक अचीव हो चुके हैं, बट actual targets are coming up to 22,000. So I'm sure अभी 22,000 तक रैली चलेगी. So much so that मुझे लग रहा है कि the way FIIs have started coming now because they have just started entering. So there is a big possibility that they might feel they might be having a feeling of FOMO. तो वो भी अभी अगर अब पैसा डंप करेंगे, आई मीन इन्वेस्ट करेंगे here, तो इतनी जल्दी तो दे विल नॉट बी satisfied, so they will take the nifty to even much bigger levels, maybe possible 23,000 also. I mean that is possibility. मैं तो अभी तो technically that comes out it is 22,000. उसके बाद with momentum, of course, with when a stock hits a technical target, with momentum it goes beyond that. But the way things are happening and the way FIs have started coming, तो मुझे इसमें कोई अच्छा नहीं होगा। और अभी आईटी सेक्टर ने तो अभी चलना शुरू हुआ है, बैंक तो अभी भी बहुत लेगा। आई मीन इट इज स्टिल हैज टू परफॉर्म। तो दैट वे इफ यू कैलकुलेट द थिंग्स, तो मुझे लग रहा है कि 22,000 इज नथिंग. The Nifty will go beyond this. But of course, like I said in my channel also, after 22,000 we'll become a little bit cautious. तो वहां पे तो थोड़ा कॉशियस होना बनता ही है ना, बिकॉज हमारे टेक्निकल टारगेट वो होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद अगर एक वेव आएगी, द वे पैटर्न्स आर फॉर्मिंग, तो हम वहां से फिर देन विल हैव अ कॉशियस अप्रोच। बैंक निफ्टी में भी जो मैंने कहा था, बैंक निफ्टी राइट, तो बैंक निफ्टी इज गोइंग एज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, जिसके 4 टारगेट्स हमारे मीट हो चुके हैं। माई फाइनल टारगेट इज 49,000। तो 49,000 भी इट कुड बी अ कंजर्वेटिव टारगेट। 48,000 तो हो ही चुका ऑलरेडी, तो माई कंजर्वेटिव टारगेट इज 49,000। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई जस्ट बिकॉज आई सेड यू स्टार्ट बाइंग ऑप्शंस, आई मीन you should also weigh your risk and reward. So I'm very bullish. I have always been bullish, but of course 49,000 is on the cards. उससे ऊपर भी जा सकता है, when I don't know, but of course last time I was expecting this in few weeks, and that happened in just few days, hardly 2 weeks, and all the targets are achieved. So just have a good ride over here and book your profits. Time profits that come to your bank are the profits. The rest is all calculations. So abhi we'll start with first. The first is regarding Canara Bank. Canara Bank, he says, I don't know, yeah, I cannot pronounce your name. Uh, Canara Bank, you are already having 71% profit. Okay, that's it. Uh, let's see, Canara Bank. Okay, the way it is forming, देखो अब it's already going. I mean, it's a making a rounding bottom. This will be a first, uh, resistance. But be cautious. ये first is, I mean, this is a second attempt, and in second attempt you should be cautious. And then there are multiple resistances. If you see, here is the resistance. Here is the resistance. Here is the resistance. So of course it should go upwards, but be cautious. You just keep trailing your stop loss, and let's see whether it of course the way the things are happening. Although, like I always said, I'm bullish on private banking instead of PSU these days, because PSU have already given a very good run. So my personal preference will be uh, private banks.
But of course, if you're holding, keep holding, because you never know. The way charts are forming, you keep a bit deep stop loss and keep holding. All right, above this it will be even better. Shoaib Ahmed is asking about ADSL. ADSL. देखो शोएब, आपके सामने यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है एंड इट्स ऑलरेडी सस्टेनिंग ऑफ दिस. सो 116 आई एम अराउंड 115 का एक कीप अ स्टॉप लॉस एंड कीप होल्डिंग. हो सकता है इट विल मूव अप. आई डोंट नो मच अबाउट दिस, बट टेक्निकली this is a limit border, that is 115. उसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो then you should come out, otherwise you can keep holding. हो सकता है it will go to 140 150 are possible. Kiran asked about HDFC Bank. 1450 पे आया था, तो then I told people to buy it because that was the golden level. But again, like I said, the first target is this, which is previous resistance, and if you see the signal is generated, तो 1725 1720, that 1720, ये हमारा एक फर्स्ट resistance होगा. But it has already tried it multiple times, 1 2 3 or possibly 4 is time, because the momentum and the force is big, the volumes are happening. हो सकता है इसको ब्रेक कर गया, और अगर इसको ब्रेक कर जाता है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक, और ब्रेक कर, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, बट जैसे ही ब्रेक करेगा देन द न्यू टारगेट्स ऑफ 2000 प्लस 2100 विल बी अनफोल्डेड. तो कीप ऑन होल्डिंग. ये अच्छा बैंक है. bulk block deals and bulk deals are happening in this, so keep holding. Next is Vijay Kumar is asked about GMR Infra. So GMR Infra, if you come to this, right, yeah, technically my target is achieved, right. मैंने ये last week भी I think I had told that 77 should be the target and it is already achieved. अब इसके बाद देखो, मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, because with momentum yes it can go up, but technically there is no we should not buy here. We should, if you are holding and if you are even optimistic, because volume अच्छे हो रखे हैं नीचे ना, तो there is possibility that it move further. तो in such scenarios all you can do is trail your stop loss. स्टॉप लॉस क्या होगा, उसकी वीकली कैंडल के नीचे ये है 69, तो 69 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. अगर ऊपर चला जाता है तो ऑफ कोर्स इट विल बी गुड. सुनील भाटिया आसपास विप्रो, इज इट अ गुड बाय? यार आईटी सेक्टर अब तो सारा ही अच्छा है. इफ यू बॉट इट अराउंड 445, तो ऑफ कोर्स मैं तो 500 प्लस के टारगेट्स देख रहा हूँ. और वैसे सच बताओ तो मैं इसको वीकली रिकमेंडेशन भी दे सकता हूँ. ऑफ कोर्स मेरे पास अभी दूसरा है अभी स्टॉक टू बी गिवन, but I can give it as a weekly recommendation also. 500 plus are the targets. बहुत फोर्स आई है, एंड दिस टाइम एक देखिए एक अच्छा राउंडिंग बॉटम भी बना है अबव एलिगेटर ऑल्सो. आईटी सेक्टर इज इंटरेक्शन ऑल्सो. होल्ड करिए. 500 शुड बी ऑन द कार्ड्स. हाँ, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आपका 440, ये तो भी तो बाय रेंज ही है. 10-15 रुपए के नीचे का आप लगा लो जितनी की आप है ना, तो होपफुली इट शुड मूव अप. नायक सुमंथा कुमार आस्क्ड अबाउट वेस्कॉन. तो देखो ये वेस्कॉन इंजीनियर्स है. ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है. देखो मैं इसमें मेरे पास अभी एक मिनट, see if you calculate the ऐसे from top to bottom and you just place it here, तो 110 के approximate targets are coming. Of course अब अगर जा रहा है तो ये यहाँ पे एक बार रिट्रेस हुआ था, पर रिट्रेस में it seems quite volatile stock. तो
अब या तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो जो कि 69 का एंड कीप होल्डिंग, राइट. Volumes are good, I think. Technically, it should hit 100 plus, 110, quite possible. तो keep holding. ये retracement है, देखो अब चल stocks never move in one direction. तो बाकी you can check the fundamentals also, whether you can hold it or not. Stop loss you can keep the below this candle. I mean it might make a double bottom here and then come up. अब इतना नीचे तो आएगा नहीं 59 तक, because it has already retested there. But on closing basis you keep the 69 as a stop loss. Abhishek Verma asked about Tex Macro-Rail. यार मुझे वो अच्छा लग रहा था टीटागढ़ रेल, बट वहां पे एंट्री अच्छी नहीं मिली. देखो 200 प्लस की, मैं आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड 200 प्लस का टारगेट है, कीप होल्डिंग जाएगा. और एंड आई थिंक इवन बजट थीम इज कमिंग, सो इट शुड वर्क गुड. शिखर पाठक आसपास जील. हाँ तो देखो एक अच्छा यहाँ पे रीटेस्ट करके इट इज फॉर्मिंग दिस इज बेसिकली resistance, and sometimes when resistance is it faces a resistance, then check where it the falling stops. तो अगर यहाँ तक आता है तो मुझे लग रहा है कि इसकी फॉल इससे नीचे नहीं आएगा, तो 240 का आप एक स्टॉप लॉस लगा लो. इसके ऊपर गया तो इट विल बी ये तक कप एंड हैंडल का फॉर्मेट बन रहा है. और अगर यहाँ से देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है. और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, है ना, आप देखो यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नहीं बन रहा, बट कप एंड हैंडल का तो बन ही रहा है. तो अगर फ्रेश बाय करना चाहते हो तो जैसे ही 290 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा मूव देख सकता है. सो आई थिंक बहुत अच्छा चार्ट है इसका. कीप ऑन होल्डिंग. अगर इसके पास है 240 तो वहां पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है. छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो बिलो 240 से 235 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, आएगा नहीं वैसे. नेक्स्ट इज हर्षित गुप्ता आसपास प्रकाश पाइप्स. प्रकाश पाइप्स ही बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है. अब इससे ज्यादा मैं इससे क्या उम्मीद करूं, पर यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है. तो आप इतनी ही लेंथ मेजर करके देख लो. यहाँ पे 520, आई मीन दिस इज 340 एंड दिस इज 440. सो क्वाइट पॉसिबल एक 100 रुपीज का फर्दर अप मूव दिखा दे. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है. स्टॉप लॉस यू नीड टू पुट बिलो दिस. अभी तो यू नीड टू चेक वेदर इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं. अगर आप फ्रेश बाय करने जाते हो तो इसके ऊपर करो, नहीं तो नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 390 के नीचे का स्टॉप लॉस लग जाएगा. विपिन कुमार आसपास टेक महिंद्रा. यार पूरा आईटी सेक्टर अच्छा है. मैंने तो आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे. और बेसिकली आई गो फॉर द स्टॉक्स दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ which are near support and on the verge of breakouts. तो अब ये देखिए ये भी अच्छा है टेक महिंद्रा. यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनी है. अब ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस है 1530. मुझे लग रहा है वहां तक चला जाएगा. 1500 प्लस on the charts. So if you are holding, keep on holding. If you want to buy fresh, तो इसके ऊपर यानी कि 1320 के ऊपर you can buy fresh. तो 1320 के ऊपर भी बाय किया है. 1500 के टारगेट. आईटी सेक्टर सारा ही चलेगा. मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि आईटी सेक्टर, इवन की लास्ट वीक मेरी रिकमेंडेशन थी आईटी 10% वो दे चुकी है विद इन 1 वीक. सो आई एम दैट मच बुलिश. मेरी आई एम एक्सपेक्टिंग at least 20% प्रॉफिट इन दिस. तो ऑफ कोर्स एक दो मैंने पोजीशंस हल्की की हैं. बिरला सॉफ्ट मेरा 900 का टारगेट था, बट आई बुक बिकॉज अब कितने स्टॉक्स लूंगा, आई नीड टू रोटेट मनी ऑल्सो ना. नेक्स्ट इज निखिल चावला जी आस्क्ड अबाउट तिलक
नगर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। देखिए टेक्निकली तो आई डोंट सी एनीथिंग, बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब स्टॉप लॉस क्या बनेगा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। फ्रेश बाय मत करना, है ना। उसके लिए हो सकता है हमें डेली चार्ट पे आना पड़े। ये देखिए डेली पे आपको 240 का स्टॉप लॉस दिख रहा है। यू कैन कीप इट, मार्केट एज 240 एज अ स्टॉप लॉस। 245 के नीचे भी वैसे हो सकता है। यहाँ पे हालांकि छोटा सा सेल सिग्नल भी है, बट आई डोंट कंसिडर इट मच। तो आप 240 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। फ्रेश बाय मत करो आप, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रन हो चुका है। देखो ना 35 से 250, अब वो कितना भागेगा वो। भावेश मेहता आसपास IRCTC, देखो IRCTC एक्चुअली पता क्या होता है, एक बार एक स्टॉक बहुत अच्छा रन कर जाए, देन उसको एजेस लग जाती हैं वापस वैसे ही रन दिखाने के लिए। IRCTC 1200 से 5000 हो चुका था, 5 गुना, आई मीन मोर देन 4 टाइम्स ना। तो अब उससे ज्यादा उम्मीद करना मुझे नहीं अच्छा लगा। आई मीन ऑफ कोर्स हाँ यहाँ पे आओ इनकी अभी शॉर्ट एक छोटा सा ब्रेकआउट है इफ यू सी। और मैंने भी देखा था फंड्स ने लास्ट मंथ भी ना, लास्ट क्वार्टर भी इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। तो पॉसिबली अब, और क्योंकि बजट थीम्स भी आ रही है, तो ये एक चैनल, ये कंसोलिडेशन चैनल है। तो मुझे लग रहा है इसके बाहर आ जाएगा। अब ये इसी को लगा लो आप, ये कंसोलिडेशन चैनल है, राइट। ये इससे बाबर यहाँ पे अगर टिक गया तो यू जस्ट नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द चैनल, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड जस्ट प्लेस ओवर हियर। ये हमारा ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही बनता है 900 प्लस, तो ऑफ कोर्स फ्रेश बाय बन सकता है। मैंने एक्चुअली इसके अभी शॉर्ट टर्म के चार्ट्स चेक नहीं किए थे, बट मैंने अवॉइड किया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा रन हो चुका था। बट येस इट इज लुकिंग गुड नाउ। ये एक चैनल के बाहर आ चुका है एंड यू कैन बाय हियर फ्रेश, कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस विच इज 740 एंड कीप ऑन होल्डिंग फॉर द टारगेट्स ऑफ, ये आपका पहला टारगेट बनेगा 814 और उसके बाद 840 और 900 प्लस। मोहम्मद सोहेब पटेल आस्क्ड about Syngene. He bought at 685, breakout failed. इसका ब्रेकआउट फेल हो गया क्या? Syngene, हाँ ब्रेकआउट तो फेल हो चुका है इसका, बहुत फोर्स से गिरा है। मैं आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। लेट्स कम टू वीक मंथली, यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी हमें। देखो मंथली में इफ यू सी, ये हमारा एक चैनल था, है ना। सी व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन डेली और वीकली, then you can need to change the chart and see on what is happening on the bigger scale. तो मंथली पे हमने देख रहे हैं कि ये बेसिकली इसका टारगेट बनता था, ये आपका एक रेंज टारगेट बनता था और उसके आसपास ही आके गया है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी इसमें 880 पॉसिबल है, बट इट विल टेक टाइम। स्ट्रेंथ कब आएगी उसके लिए हम वीकली पे आके चेक करते हैं। ये हमारा 730 के ऊपर और 750 के ऊपर, मीन 730 के ऊपर रिवर्सल बनेगा, 750 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। तो कीप ऑन होल्डिंग। वैसे तो देखो यहाँ पे है, हाँ फ्रेश बाय मत करो। आपका 685 क्या है? 685, तो आपकी तो बाय इज एट गुड लेवल। आई थिंक जो बाय इज गुड, 680 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो। रिवर्सल मिला तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा आपको, और अगर नहीं मिला तो सिर्फ 5 रुपए गए ना आपके। सो यू शुड होल्ड इट on bigger charts. I mean it is, there is still possibility that it will move up. Divankar ji asked about happiest minds.
हैप्पी स्पाइस मैंने 350 पे लिया था, 1250 पे बेचा और उसके बाद इसको 1250 मैंने इसको नहीं देखा। तो ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे बाय सिग्नल बन रहा है, राइट। तो अभी बाय सिग्नल वही है, या इसके नीचे का स्टॉप लॉस 880 का स्टॉप लॉस लगा लो। इसका चैनल का अपर लेवल जो है वही हमारा टारगेट बनेगा, विच इज 1000, है ना। स्मॉल बिग से अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सही, पर मुझे टू बी वेरी फ्रैंक ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। इफ यू वांट टू बाय इट बेटर गो फॉर अदर। जब इस पे कोई अच्छा ब्रेकआउट आएगा, अच्छे चार्ट्स बनेंगे, देन यू कैन गो फॉर इट। मंथली पे भी मंथली पे भी वही चैनल के अंदर ही है, ऊपर आता है तो रेजिस्टेंस है, नीचे आता है तो सपोर्ट। तो बेसिकली 760 to 1000 समथिंग इट्स मूविंग इन अ जोन, इन अ चैनल। हर्षित गुप्ता आसवा इंडस टावल, यार ये मंथली पे तो बहुत वीक लग रहा है, वीकली पे थोड़ा एक रिवर्सल बना है। आई वॉज रीडिंग समवेयर इसने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय की है मेंबर्स की, बट अब यहाँ पे एक रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं। अगर आपने फ्रेश बाय करना है तो 205 के ऊपर सस्टेन करेगा तब करना। यहां कर रहे हो तो कीप स्टॉप लॉस बिलो 175, क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप फ्रॉम हियर, पर बहुत इट्स कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब चलती मार्केट में भी ना चले तो फिर उसके साथ रहने का क्या मतलब है। हाँ, अगर आप फंस चुके हो तो देन आई कांट हेल्प इट। झुंझार राव आसपाउट लासा सुपर जेनेरिक्स, भाई कहाँ कहाँ से नाम लाते हो यार। लासा सुपर जेनेरिक्स मस्ट बी अ फार्मा। देखिए बहुत अच्छा रिवर्सल साइन दिख रहा है वीकली चार्ट्स पे। कीप ऑन होल्डिंग, कीप स्टॉप लॉस बिलो। एक बार तो ये हो सकता है बॉटम, डबल बॉटम के लिए आए तो 23 का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव। देखो वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लूंगा अपने लेवल पे भी, अगर अच्छा लगा तो इवन आई विल गो फॉर इट। मंथली पे नहीं, मंथली पे तो 45 के ऊपर ही अच्छा लगेगा, वीकली पे थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है। इसके फंडामेंटल्स वो सब चेक करना पड़ेगा। अभिषेक वर्मा आज फॉर टीम लीज सर्विसेज, टीम लीज सर्विसेज, हाँ एक अच्छी कैंडल बनी है ना, द वे इट्स बिग कैंडल हैज फॉर्म। तो इसी के नीचे यानी कि कैंडल के नीचे विच इज 2530, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। रिवर्सल हुआ तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आई मीन देयर इज नथिंग मच टू लूज फ्रॉम हियर। इंडिया बुल्स रियल स्टेट बनी चेन आसपाउट, मुझे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा था, लास्ट वीक दिया। आई थिंक इन 3 days it has given 10% return to us and I'm still positive on this. देखिए ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बन रहा है, 94 के ऊपर इट विल लुक इवन बेटर। इंडिया बुल रियल एस्टेट स्टॉप लॉस, कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 80, थोड़ा डीप रख लो। इंडिया बुल रियल एस्टेट, HFCL, HFCL इज आई थिंक हिमाद्री ना। यहाँ पे एक सिग्नल बना है बाय का और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है मुझे। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर 2-3 days यू कैन आई मीन होप फॉर बेटर रिवर्सल। तो अगर यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट इज आल्सो देयर, तो सो मच सो गुड। नेक्स्ट मतलब वहाँ है AKI एनर्जी, यार यहाँ पे आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू होल्ड दिस स्टॉक। यहाँ पे 620 के ऊपर बाय बनता है। अभी अगर आप देखो ये कितना फ्लैट चल रहा है, आई मीन आइदर इट इज वेरी इलिक्विड स्टॉक
or very slow mover. I 1 2 3 4 I mean for 2 3 months it's on the around the same level. So if you want to I mean if you are invested then it's a different thing कि आपको इस पे काफी अच्छा कोई interest है, but from trader point of view we should always go with the money makers, especially अगर market चल रही है तो फिर भी अगर पैसा नहीं बन रहा then it doesn't make any sense. Sagar Barad asked about Coal India, sorry, HAL. HAL वैसे भी बहुत हाई मूव कर चुका है. हमने लास्ट वीक इसके 2 टारगेट्स लिए थे, हो चुके हैं. टेक्निकली आई डोंट सी, अभी तो मोमेंटम है एंड द न्यूज आर देयर. तो अगर आप इन्वेस्टेड हो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग. अभी तक तो अच्छा रिटर्न दे ही रहा है. हाँ, ऑफ कोर्स जस्ट कीप टेलिंग योर स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस क्या हो सकता है वो आपके डिपेंड करता है कि आपका होराइजन क्या है. अगर आपका मीडियम टर्म है तो वीकली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, और अगर आपका उससे बड़ा है तो आप मंथली कैंडल के नीचे बताएं. लास्ट जैसे ये है तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस बनना चाहिए, विच इज 2450. और अगर मंथली है तो मंथली पे आपको देख लो. कीप ऑन होल्डिंग, एंजॉय द राइड. शेखर शर्मा आस्क्ड अबाउट कोल इंडिया. कोल इंडिया मैंने दिवाली पे अप्लाई किया था आईपीओ में. इट मेड वेरी गुड वेल्थ दैट टाइम, वेरी गुड रिटर्न्स. बस यही एक था जिसपे मुझे आईपीओ लगा था. अभी तो देयर आर 3-4 आईपीओ गोइंग ऑन, उनमें मैंने 3 अप्लाई किए हैं. टाटा टेक तो मिला नहीं. Inox पे I have tried and there are 2 others. I don't even remember the name. One is DOMS and third is I think I don't know what is the name. Anyway, तो ये आपका शेखर जी 318 का टारगेट था, अब 350 पे है. और यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे बन रहा है. Actually, I think there is one news that Indian government is now getting more dependent on coal. तो इसीलिए एनटीपीसी भी अच्छा चल रहा है और कोल इंडिया भी चल रहा है. तो अच्छा लग रहा है. अभी देखिए यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस पार किया, अब ये रेजिस्टेंस पार कर रहा है. तो द वे इट इज गोइंग, हो सकता है ये ऑल टाइम हाई भी पार कर जाए. तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. वही मेथड वही सेम है. अगर आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस मंथ्स कैंडल, बिलो दैट. ऑफ कोर्स व्हेन इट इज इन मोमेंटम. अगर उल्टा चल रहा होगा तो फिर क्या करेंगे. स्नेह जरीवाला स्पाउट आईएफसीआई. देखो यहाँ का मेरा ये टारगेट था, ये तो अचीव भी हो गया. अब मुझे रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे. बट इफ यू आर होल्डिंग, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. टेक्निकल टारगेट मैंने ये साइज यहाँ पे दिया था किसी को 28 के आसपास एंड इट हैज बीन अचीव्ड. पीटीसी फाइनेंस आपका ये भी सेम ही लग रहा है मुझे. रेजिस्टेंस के पास है, सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन दिस. इसको पार कर जाता है देन इट विल बी गुड, राइट. बट द अटेम्प्ट इज सेकंड, वॉल्यूम्स आर गुड, so quite possibly it will happen. In such cases all you can do is trail your stop loss. There is no other option. 5 paisa capital, I think it is without space. Okay, it is just faced the resistance and now coming back. तो हो सकता है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाए और यहाँ से अगेन इट विल शो मूव.
तो जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस विच इज 460 465, you can keep a stop loss of below of that and see if it is forming another higher highs or not. Quite possibly it will go up. धीरज अरोड़ा as for अशोक लेलैंड. यार अशोक लेलैंड मैंने अपने पेज पर भी दिया हुआ है ना, एज अ recommendation, and I am disclaimer is I am also invested in this stock. Time लगता है. Sometimes what happens is even all the stocks except the Tata Motors, even Sonacoms is it not moving that much because there's a consolidation phase. ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है. अब आप देखो ये इतना बड़ा मल्टी ब्रेकआउट है ना, 2018 के बाद 2023 एंड इट वाज थर्ड अटेम्प्ट. उसका रीटेस्ट हो गया और उसके बाद ऊपर जा रहा है. 165 का आप स्टॉप लॉस लगा लो, राइट, ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड कीप ऑन होल्डिंग. ऊपर गया तो इट विल ट्रैवल अप टू 280 प्लस. ये इतना बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है. आई एम माई सेल्फ इन्वेस्टेड. अभी मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि, और वैसे भी मल्टी ब्रेकआउट्स इतनी जल्दी फेल नहीं होते, राइट. इवन इफ समटाइम्स इवन क्या होता है कि इवन इफ इट ब्रेक्स दिस इट विल अगेन बाउंस बैक. सो मैं तो इसको विदाउट स्टॉप लॉस आई एम होल्डिंग इट. और मे बी मैं उससे थोड़ा और डीप ले लूंगा बिकॉज आई हैव हार्डली सीन एनी मल्टी ब्रेकआउट फेल गेटिंग फेल. तो इफ यू इवन होल्डिंग अ ह्यूज क्वांटिटी डोंट. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर ह्यूज क्वांटिटी में बाय करते हो और 4-5 रुपए नीचे आता है और आपकी हालत पतली होती है तो क्यों इन्वेस्ट करते हो इतना. द बेस्ट अप्रोच इज आप 50% बाय कर लो ना पहले. जब आपको 4-5% ऊपर दे रहे देन क्योंकि अगर मान लो आपके पास क्वांटिटी कम है, 50% है, देन यू कैन, आपका स्टॉप लॉस और डीप हो जाता है, राइट. यहाँ से 5 रुपए नीचे गया, इफ यू आर होल्डिंग ह्यूज क्वांटिटी देन लॉस विल बी ह्यूज ऑल्सो. मैं इसीलिए कहता हूँ कि इफ यू बाय एनीथिंग ऑलवेज डू पिरामिडिंग. मैं तो किसी भी स्टॉक में आई डोंट बाय एट अ टाइम ऑल. आई नेवर पुट मनी. इट्स आई लर्नड इट हार्ड वे. आई नेवर पुट ऑल द मनी एट वंस. जितना मर्जी मैं पॉजिटिव हूँ एक स्टॉक पे, आई बाय ओनली 40-50% फर्स्ट एंड व्हेन इट मूव्स अप इन माय फेवर डायरेक्शन तो ठीक है. अदरवाइज क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है. अगर आप पैनिक कर जाओगे, सेल कर दोगे या दिस एंड दैट. आई एम क्वाइट काम ओवर देयर. मेरे पास कम क्वांटिटी होगी तो आई कीप और जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा आई विल कीप ऑन एडिंग. दैट वे आइदर आई लूज नथिंग और आई मेक गुड मनी. इसीलिए मैं कहता हूँ जस्ट बी कॉशियस. अच्छा है तो चलेगा तो ठीक है ना. यू शुड मूव कॉशियसली. हर जगह नहीं आसपास लिखी था इंफ्रा. यार लिखी था इंफ्रा, व्हाई इज इट शोइंग इस लिखी था, नॉट लिखी था. Okay, it's near support which is 275. अब यहाँ पे तो क्लियर मतलब कोई सिग्नल बन नहीं रहा ना. So what we can do is we can see what is happening on monthly charts. ये मैंने इसकी I think I have on it. देखो this is the power of learning. If you know where to buy and when to buy. देख रहे हो आप, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन थी. This was the entire I mean it needed to be the technical target was around 340 and it hit exactly that and profit booking comes. So if you know, if you do it on your own or if you learn it how to calculate things, then you will never be wrong. और यहाँ पे तो बाय करना तो स्टुपिडिटी होगी. यही हो रहा है वही बहुत सारे स्टॉक्स में ना.
which are at the at all time highs और and people are buying there. होता भी अक्सर ऐसा है, मैं सपोर्ट के पास बाय करने को कहता हूँ, पीपल डोंट बाय देयर, उन्हें लगता है यार नीचे जा, और जब वो 10-20 रुपए ऊपर जाता है ना, तब उनको फोमो आता है, ओ ये तो भाग गया, आई वांट टू बाय इट, अब खरीदे या ना खरीदे। आई मीन दिस इज जनरल सेंटीमेंट, होना उल्टा चाहिए। सो अभी तो देखिए, मुझे अभी हो सकता है ये और नीचे आ जाए, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, ये मैंने इसके ड्रॉ कर रखे हैं, 240 का स्टेप मैंने टारगेट कर रखा है, तो रिट्रेसमेंट क्वाइट पॉसिबल इट विल हिट 240। आई एम नॉट श्योर, आई मीन इट्स जस्ट अ स्टडी दैट, आई मीन आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग द वे इट चार्ट्स आर फॉर्मिंग, क्वाइट पॉसिबल वहां तक आ जाए। बाय मत करना, होल्ड कर रहे हो तो देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू, हो सकता है यहाँ से फिर मूव कर जाए, बट ऐसा होता नहीं है अक्सर। दीप सिंह आसपास, विप्रो एंड एनएमडीसी, देखो विप्रो का तो मैंने बता दिया आपको, एनएमडीसी का एनएमडीसी भी अच्छा लग रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है इसका, 220 का टारगेट है, कीप ऑन होल्डिंग। विजय कुमार आज अबाउट आईआरएफसी, यार मैं मुझे सच में इसीलिए ना, देखिए आप, अगर वैसे मैंने अभी ड्रॉ किया तो हो सकता है ये 109 तक आ जाए, वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं। मुझे पर्सनली उन स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता विच मेक न्यू हायर्स, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है ना। अब मुझे 30 रुपए का स्टॉक 3 गुना रेट पे लेने में ना, मतलब कंफर्ट नहीं आता। हाँ, अगर मैं लूंगा भी तो सपोज इफ यू आर पॉजिटिव एंड इवन आई एम पॉजिटिव, तो डोंट गो बाय टेक्निकल स्टैंड, व्हाट यू कैन डू इज आप बाय करो, ऊपर जाता है देन ऐड मोर, और जो आपकी एवरेज बाय है उससे नीचे में अगर तो आपको लग रहा है कि इट विल मूव अप, तो वो आपको रिटर्न देता ही जाएगा, इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। अब जैसे आईआरसीटीसी था, जब 1200 से चला तो 5000 तक इट वेंट विदाउट एनी break. So in such cases you can do such things also, वहां पे you cannot, अब मुझे छोटा सा लग रहा है, हाँ ऑफ कोर्स 100 इज पॉसिबल, तो हो सकता है उसके बाद नहीं, अब यहाँ से तो मैं कैलकुलेट ना करता ना, यहाँ से एक बॉटम वाला, यहाँ से सपोर्ट लेके इट इज मूविंग अप एंड यू कैन होल्ड इट, दिस इज हाउ इट शुड बी। ओके, दिस इज माय वीकली रिकमेंडेशन। थोड़ा सा ये मतलब वोलेटाइल स्टॉक है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी यहाँ पे है 220, द नेम ऑफ द स्टॉक इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, राइट। मैंने क्यों दे रहा हूँ उसका मैं आपको दो रीजन बताता हूँ। पहला तो मैंने अभी यहाँ पे आई हैड गिवन अराउंड 200 और 220 हो गया, 10% वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, राइट। अगर थोड़ा सा भी डिप आता है यू कैन बाय इट, हमारा पहला टारगेट होगा 250 245, मेक इट 245, एंड इफ इट हिट्स 245 तो ये एक, डू यू सी दिस, एक मंथली रिवर्सल होगा विच विल बी अ बिग रिवर्सल, और उसके ऊपर इट विल, आई मीन इफ इट विल मूव इवन फर्दर। और ये सब क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन ये है कि जब से ये एफएनओ बैन से बाहर आया है, तो इट हैज स्टार्टेड मूविंग गुड नाउ, अब इसको इतनी मारनी पड़ती। तो आप स्टॉप लॉस लगाना है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 200 के नीचे का लगा लो, है ना, किसी भी टाइम पे आप बाय करते हो तो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। ये जो है हमारा ब्रेकआउट लेवल है ऑन क्लोजिंग बेसिस, मतलब 2-3 बजे के बाद अगर 200 के आसपास, 200 से नीचे अगर ये चल रहा है तो कम आउट ऑफ इट, नहीं तो हमारा अब पहला टारगेट होगा 245, 245 पार कर गया तो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट होगा 280, उसको पार कर गया तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 350। सो
we are catching at the bottom, a stock at the bottom. 15-20-25 रुपए का आप रिस्क है, आया तो ये it can double your money, right? So always go with the stocks that are on the verge of reversal, और वहां पे आपके पास एक कंफर्ट होता है, एक कुशन होता है फॉर अ बेटर प्रॉफिट्स एंड लीस्ट रिस्क. So that will be all for now, and this is my disclaimer. This is all is done for the educational purpose, and there is no recommendation of buying or selling. That will be all. Have a nice day. Bye bye.